जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान. Now, we are currently working on Karma Yoga, that is chapter 3 of Srimad Bhagavad Gita. Bhagavatam are different, Srimad Bhagavad Gita is different. Srimad Bhagavad Gita is a part of the Mahabharata, and this was narrated to Arjun by Shri Krishna in the middle of Kurukshetra, before the battle was to take place. है ना? And we have reached verse number 28, right? We will work on verse number 28 and 29 today. And the beauty is, the Lord, I don't know why, is again and again giving disclaimers. वो बार बार हमें बता रहे हैं कि when this is being read and this is being understood, be very careful not to shake the belief system of somebody else. Right? So, Shri Krishna, why teaching Arjun? Because Arjun's question was, why are you making me get into karma? Right? मुझे कर्म करना ही नहीं है. I am very happy not even getting my 5 villages. I am very happy sitting in the jungle. मुझे कुछ चाहिए ही नहीं. फिर भी आप मुझे कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? Right? That is all where it started. कि मैं क्यों कर्म करूं? है ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे ये भी डर नहीं है कि people are going to badmouth me. फिर भी Shri Krishna said, no, you have to work, right? So this is where, and what was he saying? While he told Arjun that irrespective of what is your bhav, the outwardly action has to be done, right? तो उसका जवाब प्रभु दे रहे हैं. Shri Krishna is trying to get Arjun back to karma, right? Back to action, because he sat down, he put down his bow, he put down his arrow, सब छोड़ छाड़ के वो रथ के ऊपर बैठ गए कि मुझे कुछ नहीं करना है. So it is a reminder कि कुछ नहीं करना is never the way forward. करना तो है ही. And again another reminder कि श्वास लेना भी कुछ करना ही होता है. बैठ के कुछ ना करना भी कुछ करना होता है, right? And कुछ करना भी कुछ करना होता है, देखना भी कुछ करना होता है. Even the mundane activities which happen without our notice, our action, तो बाकी सब क्या है, right? So state of inaction is not possible. So doing that, understanding it, understanding what karma is, we have reached a state now where Shri Krishna is actually explaining कि in reality, like we discussed in the last class, with an example of a child who is pushing an already moving car, assuming that he has been the one who got the car from point A to point B and rejoices at the outcome, is life. We are that child, right? हम कुछ भी करें ना करें, the car will get from point A to point B. Irrespective of our action, the car is already in motion. Right? That is what we understood. उसके अलावा हमने काफ़ी सारी बातें की थी, but that is what we understood. And now the Lord goes on to tell us very clearly 2 things. एक, तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ. I'm telling you a secret. And second, be mindful whom you tell the secret to. है ना? मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, पर तुम सोच समझ के आगे बताना, पात्र देख के आगे बताना. यू नो, इफ समबडी इज रिसेप्टिव, आप ये समझिए कि अगर देर इज अ बल्ब, राइट, देर इज अ सर्टन वोल्टेज दैट द बल्ब कैन हैंडल, इजंट इट? सपोज वी पुट मोर देन दैट, व्हाट विल हैपन? द बल्ब विल एक्सप्लोड, राइट? सो यू बी वेरी केयरफुल कि जो मैं बोल रहा हूं तुम किसको आगे बता रहे हो, whether he'll be able to handle the voltage or the weightage of what is being said, or it is going to break that person. Be very careful, right?
तो सोच समझ के बोलना। एक छोटे बच्चे को आप 12वीं का ज्ञान नहीं दे सकते, राइट? जो प्रेप में है या केजी में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटलायर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल क्राउड. In the same way, when you are opening your mouth about the knowledge that I am imparting to you, be very careful. So the teacher is teaching the teacher how to teach. क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं टीचर्स ही होते हैं ना, हमारे बच्चों के टीचर्स, हमारे आस पड़ोस में. there is somebody, as we said long back, we had discussed, we have a circle of influence, है ना? Some influence us, some we get influenced by. Some we get influenced by and some get influenced by us. So we have a circle of influence. ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई और प्रभावित नहीं हो रहा हो. कोई हमसे प्रभावित होते हैं, किसी से हम प्रभावित हो जाते हैं. This is life, right? तो इसी के लिए saying be mindful, be very careful whom you are giving this knowledge to. तो आज ऐसी क्या चीज बताना चाह रहे हैं प्रभु? चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी, है ना. लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी नाइस सिनारियो, अ वेरी स्मॉल स्टोरी. ठीक है. अज्यूम कि एक तूफान आया. ठीक है. तूफान, ग्रेट स्टॉर्म, एंड दिस रिवर, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म, द वाटर इज, द रेन्स आर, जैसे बादल ही फट गए हो एक तरह से, आप ये मान लीजिए, जो होता है ना कई बार. And the river is overflowing. All the trees and the branches from both sides, they get cut or they get pushed into the river. There are twigs, there are animals, there are branches, there are trunks, there are other objects also which have all fallen in because of the turmoil, because of the flood. Now what will happen when the current is flowing? क्या होगा? Two things might touch each other, right? It could be two twigs, it could be two cars, it could be a car and a twig, it could be a branch and an animal. Assume, आप एक बाढ़ का सोचिए क्या होता है when there is a storm and बाढ़ आती है, तो कुछ भी चीज एक दूसरे से टकराती है ना. And because of the current and the wind and everything, वो वापस अलग भी हो जाती है. होता है नहीं होता, right? अब ये सब चल रहा है, हाँ. और अब वो जो दो टुकड़े लकड़ी के एक दूसरे से टकराए थे, वो ये मान लें कि हमारे टकराने के पीछे शायद कोई कारण था. अच्छी बात है, मान लीजिए. शायद नहीं था. It was just the current and the flow, and that is probably what life is all about. सोचिए, imagine, just put this scenario. Because your scriptures are meant for us to think. They are meant for us to question. सनातन धर्म में ना एक प्रथा बहुत प्यारी सी है कि you can read, you can analyze, you can agree, you can disagree. Right? There was one student who went to his guru and asked, "Is it okay if I disagree with Shri Krishna?" गीता पढ़ ली होगी, बच्चे कई बार बोलते हैं, "No, I don't agree with this." It's okay. So the student, a disciple, went to his guru and asked, "Is it okay if I disagree with Shri Krishna?" The guru looked at the disciple and he said, yes, it's okay. But kindly disagree with respect. That is all that is needed. आप सोचिए ना, कमेंट्री की कमेंट्रीज होती हैं, कमेंट्री की सिंप्लीफिकेशन होता है, कमेंट्री में जो चीज नहीं बोली है वो उजागर की जाती है. देखिए, there is no new knowledge which is being projected. This is not science ki yes, unless and until there is a new discovery, how can I put my name to it? We cannot put our name to it. Yes, we can agree, we can disagree with respect. We can try to understand and frame other examples. We can try to simplify or confuse the already existing people. But the knowledge exists. So, क्या बोला? Disagree करना है, करो, पर respectfully करो. Right? That is all that is. So that is the prerequisite. So over here, nobody is compelling anybody to believe कि बस यही है, full stop, question mark, no questions asked. नहीं है. In fact, they say, सोचो, आपको क्या लगता है? Shankaracharya ji and all our great sages
used to have debates, friendly debates, where the viewpoints were exchanged. Sanatan Dharma has various philosophy, द्वैत, अद्वैत, वशिष्ठ अद्वैत, जो आपको फॉलो करना आप करिए. जिस लाइट में आपको संसार को देखना है देखिए. What we are giving you is probably just a slight little picture of our limited understanding with the help of Ram Sukdas ji. That is it. क्या ये प्रमाण है? शायद नहीं. But probably this is, the purpose is to get you to think. And अगर thinking नहीं हो रही है तो सब व्यर्थ है. Right? Thinking नहीं हो रही है तो सब व्यर्थ है. If you don't get up and say, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या? Then सब व्यर्थ है. The entire session was a waste. Right? So, let's go back to the storm. Right? And but remember, disagree with respect. है ना? तो storm है, and now the twigs are meeting, मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, अलग हो रहे हैं. कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है. उसमें पूरा समुद्र, वो जो लहरें आ रही हैं, जो रिवर है, जैसे जैसे उसका वेग है, जैसे जैसे इट इज फ्लोइंग इन द करंट ऑफ दैट रिवर, थिंग्स आर मूविंग. But now if that piece of wood sits down and says, कोई कारण होगा, तब क्या होगा? पता है कई बार the example is given, we keep questioning, yeah? Why me? वैसा क्यों? ऐसा क्यों? There must be a reason, there must be a reason. So there is another viewpoint which is said कि क्या पता हवा चली, है ना? हवा का झोंका आया, है ना? आपका दुपट्टा हिला और आपको पता भी नहीं चला. क्या पता ठाकुर जी को पता ही नहीं चला हो कि कुछ हुआ भी है. We believe that we exist and are. मेरी अहमियत इतनी है, मैं, मेरा अहंकार, I am, there is a reason, there has to be justifications. What if there are not? What if it is just a game which is happening between Rajas, Sattva, Tamas here and Rajas, Sattva, Tamas there? और वो आपस में टकरा रहे हैं, दुखी हम व्यर्थ हो रहे हैं. It is a game between the expectations and the ego, and who is suffering? The me, the I, which is not involved. कभी आपने ऐसे सोच के देखा है क्या? तो this verse number 28 is opening and taking us deeper, probably questioning our belief, shaking us out of our comfort and slumber, and telling us अब ऐसे सोच के देखो. Right? So, verse number 28. Let's see. हाँ. तत्वविद्युत् महाबाहो गुणकर्मा विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते इति मत्वा न सज्जते. What is he saying? परंतु है महाबाहो, परंतु my dear अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला, तत्व ज्ञानी क्या होता है? We have talked about it. We'll come back to it. Tattva, that is Prakriti and Purush, right? And Prakriti में सारा जो creation है, there are almost 26 of them. तत्व ज्ञान होता है इसको. There is a stream of तत्व ज्ञान. आप लोग पढ़िएगा कभी, बहुत बहुत रोचक है. तो what is he saying? परंतु है महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला, तत्व एलिमेंट्स से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं. संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता. ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता. What is he? But he who knows the truth, O Almighty. Tattva, like the essence समझ आ गया. You have broken it into particles and now you know, अच्छा ये है तत्व ज्ञान. That is the true knowledge. But he who knows the truth, O mighty armed, about the division of qualities and their functions,
And he who knows the gunas as senses moves amidst gunas as objects and is not attached. We'll read the commentary a bit, है ना? एक प्यारी सी commentary है इसमें. Again, what is he saying? He knows the truth that the self is entirely distinct from the three gunas. ठीक है? The self कौन? ये भी हम समझेंगे. चलिए, the self is the example. Probably it is not exactly the same thing. थोड़ा बहुत फर्क होगा, बिकॉज हमारे कोश होते हैं, कोई बोलते हैं 5 हैं, कोई बोलते हैं 7 हैं. फ्रॉम द ग्रॉस टू द सटल वी हैव डिफरेंट बॉडीज, राइट? ग्रॉस बॉडी टू द सटल बॉडी एंड इट गेट्स कहते ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ऐसे ऐसे करके, है ना? अन्नमय कोश से शुरू होके नीचे जाता है. बट वॉट ही सेइंग इज ही हु नोज द ट्रूथ दैट द सेल्फ इज एंटायरली डिस्टिंक्ट. वॉट इज द सेल्फ? दैट सेल्फ इज, there is no small I or big I, there is only one I. एक तरह से, just a simple example, probably not exactly replicable but very close to what they are trying to explain is, अपने घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, है ना? माइक्रोवेव है, एसी है, फ्रिज है, right? We have that machine that presses our legs also. So many equipments are there in our house, isn't it? Everybody, every equipment is supposed to do something. The fridge is supposed to cool, right? The heater is supposed to heat. The washing machine is supposed to wash the clothes. उसके inherent गुण है ना कि उसको ये काम करना है. If there is a machine that is supposed to press my legs or the chair I am sitting on, it is a massage machine. वो उसका गुण है, वो सब ये करेगा, right? हाँ या ना? तो आप सोचिए, superficially the closest example, एयर कंडीशन है तो ठंडा कर रहा है घर गर्मी में. तो सबके अपने अपने गुण हैं, उपयोग है उनका कि ये उनको काम करना है. पर व्हाट इज दैट अंडरलाइंग थिंग दैट आई जो नहीं है तो ये कोई भी नहीं चलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी. अग्रीड, राइट? लाइट ऑफ, फिर नाइदर द एसी विल वर्क, नाइदर द फ्रिज इज गोइंग टू वर्क, नॉर योर वॉशिंग मशीन इज गोइंग टू वर्क, त्राही, नॉर द मसाज मशीन इज गोइंग टू वर्क. Although they have their same different gunas, but there is one substratum that is equal and that is operating, that is the life-giving force to all these equipments. What is it? The electricity. So electricity जड़ नहीं है, वो चेतना है इनकी, जिसके कारण ये चल रहे हैं. नहीं हो तो क्या होगा? मर्सिडीज भी चल रही है, स्कूटर भी चल रहे हैं, है ना? मारुतीज भी चल रही हैं, सारी गाड़ियां चल रही हैं. पेट्रोल नहीं हो या डीजल नहीं हो या सीएनजी नहीं हो तो क्या होगा? चल रही है ना. सबका हॉर्स पावर अलग है, सब अलग है. बट देयर इज दिस वन थिंग दैट इज द आई वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. आप हो, मैं हूं, हमारे सबके अलग अलग शरीर है, अलग अलग गुण है, अलग अलग जीने की शैलियां हैं. पर एक जो चीज है जो नहीं हो तो क्या होगा? दैट आत्मन, that energy that is equal in all of us. हम सब में वो ही एक चेतन तत्व है. Everything else is जड़. Without that चेतन तत्व, even the thought is not going to be there. So even the thought is जड़. जड़ is totally inanimate. So ये जड़ संसार है, हम भी जड़ हैं. चेतन तत्व कौन सा है? That energy. So what we are saying is, he who knows the truth, this simple truth. Now there are various instruments. एक और example लेते हैं हम. Various wind instruments होते हैं. Flute है, pipe है, trumpet है, right? They have different sounds. They produce different music, right? But suppose, what is the common thing amongst them? The air that is being blown into it. On its own, trumpet रख लीजिए, flute रख लीजिए, आप the pipe bag रख लीजिए. You put it everything in front of you. Without that air which is being blown, will they breathe on its own? No. There won't be any music that will come out. But yes, the music is different in a flute and a trumpet. So what is that tattva that we are talking about? That is that. Air है उसमें, electricity है. हम में क्या है? मैं कौन? सच्चिद आनंद स्वरूप.
that divine infinite bliss, that energy, that one that shines through everybody, that energizes everybody, that gives power to operate to everybody, जिसके कारण चेतना आती है इस जड़ शरीर में. राइट? सो व्हाट इज ही सेइंग? ही हु नोज द ट्रुथ. एंड आप सोच लीजिए, एक बार आप सोच के देखिए कि मैं वो हूं, मैं ये जड़ शरीर नहीं हूं, मैं ये गुण नहीं हूं, मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं हूं, मैं ये अहंकार नहीं हूं, मैं ये स्वभाव भी नहीं हूं. आई एम नॉट दिस नेचर. आई एम नॉट द सत्व रजस तमस विच ऑसिलेट्स इन मी. हु एम आई? दैट चेतना. ठीक है? सो डिस्टिंक्शन. सो व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर इज, he who knows the truth that the self is entirely distinct from the three gunas and actions does not become attached to the action. अगर आपको समझ आ जाए ये बात कि मैं तो इलेक्ट्रिसिटी हूं, मेरा स्वभाव कुछ फ्रिज जैसे ठंडा करना या हीटर जैसे गर्म करना थोड़ी है, ये तो इस शरीर का स्वभाव है, शरीर के गुण है, मेरा गुण थोड़ी है. एक और एग्जाम्पल देते हैं ना, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी नो, बट द कंडीशनिंग इज सो स्ट्रॉन्ग दैट वी आर नॉट एबल टू ब्रेक इट. देन यू विल से व्हाट डू यू मीन? तो क्या मुझे प्यास नहीं लगती? अभी मैंने बैठ के पानी पिया ना, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है, मुझे प्यास लग रही है. तो क्या मुझे प्यास नहीं लग रही? तो किसको प्यास लग रही है? अब ज्योति जी बोलेंगी या सुमित्रा जी बोलेंगी कि भाई मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो मैं क्या करूंगी? मैं आपको एक गिलास पानी दूंगी, आप पी लीजिए, बस उतना ही है. इस शरीर को प्यास लगी, मैंने एक गिलास पानी दिया, उसने पी लिया, खत्म हो गया. इसमें मैं पना कहाँ आ गया? जैसे आपको पानी दिया मैंने, वैसे इस शरीर को भी पानी दे दिया. जस्ट बिकॉज आई एम दैट चेतन, दैट सच्चिदानंद स्वरूप, दैट डज नॉट मीन आई एम गोइंग टू स्टार्व और डिप्राइव माई बॉडी ऑफ वाटर. उसकी जरूरत है तो पानी तो पिलाएंगे, खाना तो खिलाएंगे, बट वेयर इज द ओवरलैप? Then you'll say, so we don't feel pain. Of course the body feels pain. So what? If somebody else is feeling pain, you're not going to say, नहीं तुम्हें नहीं लगी, अरे खून आ रहा है, पट्टी लगा दो ना. तो आपके भी शरीर को अगर खून आ रहा है तो पट्टी लगा दो. पर इस भ्रम में क्यों जीना है कि ये शरीर मैं हूं? ठीक है, थ्रू कंपैशन आप किसी दूसरे को पट्टी लगाएंगे तो इसमें तो आपकी आत्मा का वास है, तो इसको भी पट्टी लगा दो. बहुत मुश्किल है ना ये करना. क्या उसको लगी है, वी आर कंपैशनेट, हमने उसको बैंडेड कर दी. तो सेम वे दिस इज नथिंग डिफरेंट. आपको प्यास लगी, मैंने आपको पानी पिलाया. इस शरीर को प्यास लगी, मैंने इस शरीर को पानी पिलाया. आपको लगी, मैंने आपकी मरहम पट्टी की. इस शरीर को लगी, मैंने इसकी भी मरहम पट्टी कर दी, खत्म. ये मैं नहीं हूं. द डिस्टिंक्शन स्टिल हैज टू बी देयर. दैट व्हेन द डिस्टिंक्शन इज एविडेंट, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग विल चेंज. Just like we are not going to let anybody else suffer of thirst, we will not let this body suffer of thirst also, ना. इसको भी पानी पिलाएंगे, इसको भी खाना खिलाएंगे, इसको भी समय पे सुलाएंगे, है ना. इसकी भी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, जैसे आप किसी और को ले जाते हो. So now they are saying, he who knows the truth that the self is entirely distinct from the three gunas and action does not become attached to actions. He who knows truth about the classification of gunas and their respective functions understands that the qualities as sense organs move amidst the qualities as sense objects. Therefore, he is not attached to the actions. He knows, I am a karta. I am not the doer. देखिए, everything starts with मैं. The minute we attach मैं, ये मेरा शरीर है, ये शरीर मैं हूं, जैसे ही हम ये अटैचमेंट करते हैं वैसे ही the struggle of agony starts. Let's take it a bit distant again, because this what he is saying is very beautiful. When somebody else's house is burning, in this world there are so many wars happening, thousands of houses are falling, hundreds of children are dying. क्या हुआ? आपकी हंसी बंद हुई, आपका खाना बंद हुआ, आपने रोना धोना शुरू किया. ठीक है, मोमेंटरीली दुख हुआ,
क्यों? बिकॉज देर इज नो अटैचमेंट. यू आर नॉट सेइंग दैट इज माइन. दुख कब होता है? जब मेरा आ जाता है बीच में. अगर उस स्थिति में कोई रहे, किसी का घर जल रहा है, अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. 2 people are sitting in a pub or in a club or in a restaurant, whatever you like it. They are eating and drinking and enjoying, and suddenly there's this news कि घर जल गया. That person is very calm. Suddenly they say किसका घर जल गया, and he realizes, oh my God, that is my house. He weeps and cries and runs. What changed? पहले भी घर जल रहा था, अभी भी घर जल रहा है. What changed? मेरा. So, if this is the only change, right? If this is the only change, her husband cheated on her. Oh, not good. My husband cheated on me. Oh my God. क्यों? Because वो मेरा है. What is the मूल कारण of agony? Is the action or the situation that is happening outside? No, our attachment. The minute we connect ourselves, the agony starts. The minute we know the tattva, the honest truth, कि ये तो मैं हूं ही नहीं, the agony stops. That is what he is saying. So what is he saying? यहाँ पे हम कुछ पढ़ते हैं. So what is the problem of everything? The underlying problem in our lives and whatever we are going through is nothing, not the situation, not the people, nothing else. It is rag and agyan. 2 things. Rag and agyan. Agyan, ignorance. We do not know. अज्ञानी मनुष्य तत्वज्ञानी नहीं, उसको समझ ही नहीं है कि मैं तो वो चेतन तत्व हूं, मैं ये जड़ शरीर और उसके आगे के संबंध नहीं हूं. We have not detached. So ये अज्ञान है. And what is राग? यहाँ पे लिखते हैं राग अविवेक से होता है. When there is no vivek, see this kind of a thought, when we are thinking, when we are talking, when we are trying to distinguish with various examples, this is a work of vivek, right? हम हमारा विवेक काम में लेके कुछ चीज प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल्दो क्लास के बाद में हम वैसे ही हो जाएंगे, मेरा बेटा, मेरा संसार, मेरा घर. होना नहीं चाहिए. हाँ, होना नहीं चाहिए. We have to hold on to this when we are reveling in the world also. But राग अविवेक से होता है और विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है. राग इज दैट एक्सेसिव अटैचमेंट. मोह एकदम हमारा जो डिल्यूजन है, माया है, अटैचमेंट है. राग, द्वेष ना फिर भी ठीक है. राग बहुत, ममकार और राग. कहते हैं ना कई लोग कि मैं द्वेष से तो नहीं मरूंगी, मैं राग से जरूर मर जाऊंगी. मेरे को इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है ना, नॉट ओनली थ्रू टू पीपल बट माई थिंग्स ऑल्सो. You know, we are so attached to even the gifts that we are giving. After giving the gift, we want to know whether the person used it or not. And if he did not use it, what did he do with it? Who is using it? अरे मैंने तो बड़े प्यार से दिया था, दे दिया ना, खत्म. ये है राग. जो चीज दी है उसमें भी राग है हमारा. चीजों में राग है तो हमारे इंसानों में और हम में कितना राग भरा हुआ है खुद के लिए. सो व्हाट ही इज सेइंग इज राग किससे आता है? अविवेक से आता है. और जब विवेक जागृत होता है, when we start through this questioning, through this constant awareness, through this talking, through this answering, who am I, को हम, केनो हम, कैसे, फिर क्यों. कहते हैं ना, इसीलिए we are not asking you not to question. In fact, the entire process is for us to start questioning, right? So राग अविवेक से होता है, विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है. यह विवेकी मनुष्य में विशेष रूप से है. राइट? क्या आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है. जैसे हमने लास्ट वीक बहुत सिंपल सोल्यूशन दिया था ना. क्या बोला था हमने लास्ट वीक? वी सेड बहुत ब्यूटिफुली एंड सिंप्लीफाई करके इन्हें बोला था कि हाँ ये रहा. क्या करें when all this is happening, you know, ये मान्यता है, वो मान्यता है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. Let me just look for it. Where is that line? Because the way he said it was very simple. हाँ,
मानना, ठीक है। अब क्या करें, यू नो, व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग, कि बिकॉज सो मच ऑफ कंडीशनिंग इज देयर, दे सेड ना, यह माना हुआ अहंकार, वी वर टॉकिंग अबाउट अहंकार, वी आर ऑल्सो कंटिन्यूइंग विद अहंकार, राइट। ये माना हुआ अहंकार करने से नहीं मिटता। क्या करने से? उद्योग करने से, एफर्ट करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार है कि मैंने मेहनत की। तो द आंसर वॉज वेरी सिंपल, राइट। माना हुआ अहंकार मिटता कैसे है? अस्वीकार करने से, अर्थात न मानने से। जो चीज आपने मानी है उसको मत मानिए आप, तो आपका खत्म हो गया वो। तो इन द सेम वे ओवर हियर व्हाट आर दे सेइंग, कैसे राग ये सब कैसे मिटता है? विवेक को महत्व देकर। बिकम अ थिंकिंग ह्यूमन, सी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, एवरीबडी कैन डू। हमारे में एक जो है ना विवेक है, वो हर किसी योनि में नहीं होता, हर किसी स्पीसीज में नहीं होता। सो वी हैव दिस विवेक। सो दे आर सेइंग जस्ट यूज योर विवेक विच हैज बीन गिवन टू यू। व्हाट आर दे सेइंग? आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है, अतः साधक को विवेक के जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। दैट इज द अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज अटैचमेंट, राग। सो यू पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, अपने विवेक को जागृत कीजिए, स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन इंटेलिजेंट बीइंग एंड रिमूव राग। वेरी सिंपल। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज, गुणों से गुण टकरा रहे हैं। सत्व रजस तमस, आप में भी है सत्व रजस तमस, मेरे में भी है, राइट। एज वी सेड लास्ट वीक, अगेन everybody is acting based on the sattva rajas tamas which is their composition, right? And वो उनमें अलग सत्व रजस तमस है, मेरे में अलग सत्व रजस तमस है। I have this set of belief, they have that set of belief. The composition of one entity is getting affected by the composition of another entity. Where is the I in this? Right? So this creation is made of sattva, rajas and tamas. So there are different components, different proportions, different things in different people and different places, and उनका ही आपस में टकरार हो रहा है. This is working in that. So where is me involved? Very simple ना. कभी हम लोग बोलते हैं ना कि no, I got so hurt by that behavior. Let's take it a notch down to make it a little understandable. पता नहीं ऐसे लोग क्यों व्यवहार करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए ना. When it is simply put, ऐसे कर लो, why so much of disrespect? ना आपकी सात्विक टेंडेंसी है शायद ज्यादा, राजसिक तामसिक नहीं है, उनमें तामसिक थोड़ी ज्यादा है, सात्विक थोड़ी कम है. ये गुणों का गुणों में टकराव हो रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो? उसका स्वभाव, आपका स्वभाव, स्वभाव में आपस में टकरार हो रही है, दुखी हम हो रहे हैं. सृष्टि है, अलग अलग कृतियां हैं, आपस में भिड़ रही है, भिड़ने दीजिए ना. Why are you so affected? You know, most of the time the clash is not between me and you, because me and you तत्व के दृष्टि से we are nothing but energy. हम दोनों एक हैं, है ना, सात्विक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारे में there is no coloring of the गुण. But the clash is between the जड़ expectation कि हमें ये चाहिए and the जड़ ego, अहंकार जो है ही नहीं, हम जो हमने हमें मान लिया है. What happens? Do you think the clash is only between ego and expectations? The clash is not between me and you. We can't clash. हमें तो कुछ है ही नहीं है, सब सत्व रजस तमस है ही नहीं, मेरे में भी नहीं है, आप में भी नहीं है. The clashes of the titans में हम शहीद होते जा रहे हैं. सीधी सी बात है ना. So the clash is between an ego and an expectation. The clash is between my sattva, rajas and tamas, the composition of this jad sharir and jad buddhi with your sattva, rajas and tamas. Why are we taking it so seriously? Why? Because we have attached ourselves to it. कि मैं ही ये composition हूँ. I am this body, I am the sattva, rajas, tamas, I am the emotions, I am the expectations, I am the respect that I demand from people. So what is the solution?
So simple. मतलब it is so simple, and that is why probably we don't understand. इतना simple थोड़ी हो सकता है right? Now इसमें एक ट्रेन का एग्जाम्पल दिया है which I really like, and निद्रा का एग्जाम्पल which we always take. गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, ठीक है, when you are in deep slumber, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया. With this example we have given again and again to help us detached. इस प्रकार जागने के बाद मैं हूं का अनुभव सबको होता है, राइट? जागने के बाद इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्त काल में भी अपनी सत्ता थी. There was something that was watching. There was something that was awake. There was something that noticed. This will help us detach. ये तो बेसिक हमारा है ना. आज तो नींद ही नहीं आई, आज बहुत अच्छे से नींद आई, आज तो सपना ही नहीं आया मुझे, आज तो इतने खराब सपने आए. Who is watching? That is you. That is you. जो अपरिवर्तनशील है, जो सब देख रहा है, जो दृष्टा है, करता नहीं है, भोगता नहीं है. Nor the doer nor the receiver. He is only a drishta. He watches. But we have this wrong association with this. And we think, I am watching, I am doing, I am the karta and I am the bhokta. No. You are the drishta. ये बॉडी कंडीशनिंग कब टूटेगी, कैसे टूटेगी, ठाकुर जी जाने. इट इज नॉट वेरी वेरी इजी. संबंध को मानना अथवा ना मानना भाव है, क्रिया नहीं है. सो व्हेन वी स्टार्ट बिलीविंग लाइक दिस, ठीक है, यू माइट आस्क, वोंट वी बिकम इनर्ट? नो, नथिंग इज गोना चेंज. You'll still get up in the morning, you'll still cook for your family, you'll still care for your children, you'll still take a bath, you'll still care for your body, you'll still feed and give water to the body when it's thirsty. Because it is not about action, it is about भाव. और ये हम बार बार बोल रहे हैं, जैसे हम लोग कई बार पूजा करते समय भी बोलते हैं ना, without knowing we have been using this term very nicely, right? You all will agree, प्रभु भाव का भूखा है. Yes? It does not matter कि आप उसको 10 तोला सोना देते हो या एक कंकर पत्थर भी रख देते हो. एक बच्चा आके पत्थर भी रख देगा, कोई सेठ आके माला भी चढ़ा देगा सोने की या हीरे की. इट वोंट मेक अ डिफरेंस. प्रोबेबली दैट भाव इन हिम विल मेक अ डिफरेंस. सो व्हेन वी ऑलवेज से भगवान भाव का भूखा है, दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस ऑल्सो. It is not breaking physically that we are talking about. And people get scandalized, you know, when you start talking like this. इसी के लिए भगवान ने डिस्क्लेमर दे दिया, भाई हर किसी को ये बात बोल देना, है ना. पता चला जो अच्छा काम कर रहे होंगे वो भी छोड़ देंगे. जब कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, जब करता ही नहीं है, भोगता ही नहीं है, एवरीथिंग इज बट अ ड्रीम, यू आर गिविंग मी द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रीम, तो मैं करूं ही क्यों? मैं दान क्यों करूं, पुण्य क्यों करूं? ऐसा मत कर देना. जिसकी जैसी पात्रता है उतना ही ज्ञान देना, राइट? तो संबंध मानना अथवा ना मानना भाव है, क्रिया नहीं है. इज इट we normally, what has happened is we have started grossifying everything. हम सब कुछ उस tangible रूप में देखने लगे हैं. पर the entire spiritual journey and what the Gita is trying to teach us is very very subtle. The change will come in the way we feel. Nothing else is going to change. Nothing else has to change ultimately, right? So let's just read this paragraph. पुरुषों में कोई परिवर्तन नहीं होता. पुरुष में देखिए, पुरुष होता है और एक प्रकृति होती है. I'll share the chart later, right? Because all this सत्व रजस तमस and ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये सब प्रकृति में है. This is the प्रपंच. Purush and Prakriti are two, and the Prakriti has all this prapanch that we are experiencing happening. Purush is the drishta. तो पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता. There is no change. And who is this Purush? We are talking about us. मैं. I think we have been maybe nearing the understanding of what I am or what you are, right?
not the body, not the mind, not the thought, not the intellect. We are not what we think we are, right? What we can see, ये जो प्रपंच है ना, जो हमें दिखता है, फील होता है, वो हम नहीं है, right? जिसको दिख रहा है वो हम है, right? So over here is saying पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता. यह परिवर्तन ना होना उसकी कोई आसक्ता आस्था या कमी नहीं है. क्या है ये? प्रत्युत उसकी महत्ता है. Where there is no change, nothing happening there. वह निरंतर एक रस है, एक रूप रहने वाला है. एक रस, एक रूप, चेंजलेस, काम. इट इज वेरी इजी, यू नो. कई बार हम लोग बोलते हैं ना, संभाव कैसे आए, सरलता कैसे आए, उत्तेजना कैसे ना हो. हाउ डू वी स्टॉप द ऑसिलेशन and the upheaval? By detaching from what is oscillating. You're on the swing. आप ऊपर नीचे झूला झूल रहे हो, अरे मेरे को रुकना है, मेरे को रुकना है, मेरे को ऊपर नीचे नहीं जाना, ऊपर नीचे नहीं जाना. तो अगर आपको ऊपर नीचे नहीं जाना है तो आपको झूले से उतरना पड़ेगा. फिर भले ही झूला ऊपर नीचे जाता रहे, आप ऊपर नीचे जाओगे क्या? नहीं. पर आप ये मान लो कि मैं तो झूला हूं, तो फिर और आप पकड़ के बैठ जाओ कि अरे मैं तो ऊपर नीचे नहीं जाना चाहता, पर मैं ऊपर नीचे जा रहा हूं. तो बोले अरे छोड़ के नीचे उतर जाओ. नहीं, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, पर पकड़ आपने रखा है दोनों हाथों से. सो ये कर रहे हैं, परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है, जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है. ट्रू, राइट? परिवर्तन रूप क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है. ये किसका स्वभाव है? प्रकृति का, राइट? पुरुष का नहीं. परंतु प्रकृति से अपना संबंध, राइट, व्हेन वी जस्ट फील द वननेस, प्रकृति से अपना संबंध ना मानने की इसमें पूरी योग्यता है. वी हैव द कैपेसिटी टू डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम व्हाट? From what we are considering to be me. Why the repetition again and again? Because it does not sink in. Probably that's why. Right? We have the capacity. God is saying that you have the capability and the capacity to distance yourself and watch. Right? Till you do not distance yourself, the distinction won't be visible also. क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में नहीं है. It is not natural. It is unnatural. जड़ और चेतन का क्या संबंध, आप मुझे ये बताइए. Is there any relationship between? You'll say, वो ऐसे कैसे हो सकता है? What do you mean? मेरा इस कपड़े का क्या संबंध है? ये फट जाएगा तो मैं फट जाऊंगी क्या? ये जल जाएगा तो मैं जल जाऊंगी क्या? Simply same thing. जैसे I just change my clothes when they get soiled, we change our bodies when the body gets soiled and dirty. In the same way, there is no connection. Just because my clothes get torn, that does not mean I get torn. In the same way, जैसे मेरा इस दुपट्टे के साथ या इस कुर्ते के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसा ही मेरा इस शरीर, मन, बुद्धि, चेतना और एनीथिंग रिलेटेड टू इट से कोई संबंध नहीं है. इट इज जस्ट अनदर क्लॉथ. समझिए. रोज बोलिए अपने आप को, जब कपड़े पहन रहे हो ना, तो बोलिए कि कपड़े पे कपड़ा पहन रहे हो. कपड़े पे कपड़ा पहन रहे हो आप. व्हाट? कौन सा कपड़ा? ये शरीर. यस? नहीं? कितना मुश्किल है ना. ऐसे कैसे सोच लें. कोई बात नहीं. प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, ठीक है, हमने इसको अपना स्वरूप मान लिया. इट इज जस्ट अ जड़ तत्व, कोई चेतना नहीं है. बट वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, आई एम दिस थॉट, everything related to this body, my son, my husband, my house. जड़ चीजें भी हमने चेतन कर लिए. गाड़ी, गाड़ी, कपड़ा, मकान, सब कुछ हमने चेतन कर लिया. प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश में क्या हो जाती है? देयर इज अ कनेक्शन दैट हैपेंस. क्या बोलते हैं? साजत्य, प्रकृति का आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होने की इच्छाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं.
राइट? वेरी सिंपल. डजंट इट हैपन टू अस? आप सोचिए, इतनी प्यारी बात इन्हें लिखी है. वंस वी फील अटैच्ड टू दिस बॉडी and the body thought mind index and the things related to this body, that gives rise to our expectation कि अब क्योंकि ये सब मैं हूं तो मुझे फल भी चाहिए अगर मैंने कुछ कार्य किया है तो. I want to be awarded also if I am doing something. If I made amazing food, I should be said कि नहीं, खाना तो आज बेहतरीन बना था, बोला कैसे नहीं मुझे. अगर मैं हूं तो मुझे इनविटेशन भी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी अगली बार. क्योंकि हमने एसोसिएट कर लिया अपने आप को. हम भूल गए कि ये जड़ है और हम चेतन है. इस चेतन ने जड़ से संबंध जोड़ लिया. एंड देन कम्स द डिजायर्स, तृष्णा, एक्सपेक्टेशंस, द हर्ट, द सॉरो, द एगनी. राइट? एंड देन व्हाट डज ही से? गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष क्या बोल रहा है? सुख दुख होता रहता है. गुणों में अपनी स्थिति मानकर हम लोग सुखी दुखी होते रहते हैं. वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है. इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं. अगेन एंड अगेन ही सेइंग, प्लीज डिस्कनेक्ट. मानी हुई चीज को ना मानिए. इस कनेक्शन को आप एक बार रुक के विवेक पूर्वक तोड़िए. टिल वी डू दैट, everything else is going to be useless. Because if we have taken the premise as wrong, right? अगर हमारी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो the building is definitely going to fall, isn't it? So ये बोल रहे हैं कि at least work on the foundation, get the facts right. Everything else will fall in place after that. But what we normally do is we work at the superficial level. हम बोलते नहीं, हमें किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये हमारे को ना ध्यान रखना चाहिए, वी शुड गिव. बट दैट ऑल इज सो सुपरफिशियल बिकॉज हम इस बॉडी के लेवल पे सोच रहे हैं, इस माइंड के लेवल पे सोच रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू द रूट. एंड जब कहते हैं ना कि जब आपका प्रिमाइस ही गलत है, राइट, तो फाउंडेशन ही गलत है, तो बाकी कुछ सही थोड़ी हो सकता है उसके ऊपर. हो सकता है क्या? नींव की ईंट ही आपने गलत रख दी तो इमारत सही बनेगी क्या? नहीं बनेगी. सो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन ही सेइंग, अहंकार, राग, अविवेक, और फिर क्या? द वर्ड ही यूज, अज्ञान. The cause is agyan, the cause is rag, the cause is ahankar, the cause is avivek. That has to be left. तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद, again and again this term has come, संबंध विच्छेद, break the connection, break the connection. This is the simple example. आप पकड़ के खड़े हुए हो, right? A child, I have seen, there was a reel. Reels are very funny nowadays, right? Sometimes you watch. So there was a baby who was crying and crying and crying. रोए जा रहा है, चिक चिक के रोए जा रहा है. समझ नहीं आ रहा क्यों रो रहा है. फिर हम दृष्टि गई, देखा कि उसने अपने बाल जोर से पकड़ रखे. छोटा सा नन्हा सा बच्चा, 2-3 महीने का, थोड़ा बड़ा होगा, जोर से बाल पकड़ रखे. अब आपने बाल जब पकड़ रखे हैं और आप उसको फुल ताकत से खींच रहे हो तो दर्द होगा या नहीं होगा? होगा ना. और वो रो रहा है, अपने ही बाल खींच रहा है, जोर जोर से चीख के रो रहा है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है. तो सब बोल रहे हैं, उसके हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तुमने बाल छोड़े, वो खींचना बंद होंगे तो तुम्हारा दर्द बंद हो जाएगा. संबंध विच्छेद. पर हम भी तो वैसे ही बच्चे हैं ना, खुद ही के बाल पकड़ के खींच रहे हैं और रो रहे हैं, खींच रहे हैं, रो रहे हैं. तो हमें भगवान बोल रहा है, बाल छोड़, दर्द होना बंद हो जाएगा. बाल छोड़. तो कैसे भी करके उसका हाथ छुड़वाया, राइट, और वो चुप हो गया. दर्द उसको कौन दे रहा था? खुद उसने अपने बाल पकड़ रखे थे और वो खींच रहा था. माँ थोड़ी बाल खींच रही थी, पिताजी थोड़ी बाल खींच रहे थे, वो तो छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे. प्रभु थोड़ी हमारे को दुख दे रहे हैं, वो पकड़ के बैठे हैं क्या हमारे बाल? नहीं, वो बोल रहे छोड़, संबंध विच्छेद करो,
know your true self, the agony, the pain, the dejection, the hurt, everything will vanish. And then what होगा? तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से ही है. Actually, we are two entities, we are not one. केवल भूल से संबंध माना हुआ है. केवल भूल है ये हमारी. It is a mistake, it is a conditioned mistake. When the child is born, he is not very conditioned to this body consciousness. कर करके हमने मन में भर दिया है. एंड तो ऐसा नहीं है कि वी आर वन एंटिटी. वी वर नेवर वन एंटिटी. मी एंड दिस बॉडी वॉज नेवर वन. बट इट इज अ भूल, इट इज अ मिस्टेक, इट इज अ डिल्यूजन. ये मेरी भूल थी कि तुम मुझे प्यार करते थे. कई बार बोलते हैं ना इन दीज डायलॉग्स इन द मूवीज एंड ऑल, ये हमारी भूल ही है. बिकॉज वी आर सो ब्लाइंडेड by the connection ki we are one, that we can't see that we are not. But there are multiple signs daily telling us that you are not. You're two different entities. And once this realization dawns, there is no reason for us to be stooped in the pit of darkness anymore. And to this verse, ending this verse with, this very beautiful verse, he says, जब तक साधक का, एंड एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, गीता जैसे जो ग्रंथ है ना, नो मैटर वॉट वी से, बार बार आप देखिएगा, दीज आर फॉर साधक्स. व्हाट आर साधक्स? साधक कौन होता है? साधक वो होता है जो प्रभु की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो ये जानने की कोशिश कर रहा होता है, जिज्ञासु होता है कि व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट इज इट दैट आई एम मिसिंग आउट. देखिए, जो जानना चाहता है वही ग्रंथ खोल के बैठेगा ना. ऑफकोर्स कृपा तो होती है. तो दी स्क्रिप्चर्स आर मेंट मेनली फॉर साधक्स, ones who are thirsting for the truth, thirsting for the Lord, thirsting to know, not for the worldly. ठीक है, worldly कहते ना, ठीक है, it is not like the cause and effect नहीं है. आपको दर्द हुआ, आपने पैनाडोल ले ली, बहुत अच्छी बात है, बट रूट कॉज तक तो नहीं पहुंचे ना. वन पॉइंट के बाद में we'll have to figure out by test कि what is the real problem, because the Panadol is going to momentarily give you relief. So all these scriptures are not for that momentary relief that we are seeking in this world again and again. तो जब तक sadhak, again sadhak, the one who wants to know, because all our scriptures tell us, don't put us in front of a person who does not want to know, does not know our value, does not, don't open me in front of those. तो ये क्या लिखा है राम सुखदास जी, जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्वविद नहीं हो सकता, कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता. टिल वी आर इन द संसार वी कैनॉट नो द संसार. संसार से सर्वथा अलग होकर, द पोम दैट आई शेयर, टेक डिस्टेंस. कई बार बोलते हैं ना, we give this advice very calm, very normally to people. Distance yourself from the situation and then see. Right? कई बार होता है ना, you are in this situation, you are not able to figure it out. Distance yourself, watch the situation like a third party. This is a very normal advice we all give. हम लोग सब ज्ञानी हैं, हम बोलते हैं तो सब ज्ञानी निकलता है. कोई भी होता है ना, एकदम हम उलझ गए हैं, समझ नहीं आ रहा है, what is the solution, I do not know why this behavior, and then some smart person is going to say, why don't you distance yourself from the situation and watch it like a third party, then you will get the solution. अभी you are getting too influenced and you are taking it too personally, इसी के लिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है. बस वही बोल रहे हैं भगवान, सिंपल. जो हम हमेशा बोलते रहते हैं, सबको ज्ञान देते रहते हैं, थोड़ा पीछे हटो, संसार से निकलो थोड़ा बाहर, संबंध तोड़ो और दूर से देखो, तुम्हें सब समझ आएगा. संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हो. टिल वी आर इन इट, टिल वी आर, हम एकदम उलझ गए उसके अंदर, वी वुड नॉट नो. कहते हैं ना, बर्ड्स आई व्यू, वी कैन सी ओनली दिस मच,
Then you go at the top and you look and then you'll see everything clearly, right? आप अलग हो, थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा दूर जाओ और देखो, राइट? सो संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं. यह नियम है. दिस इज द लॉ एंड वी नो इट. इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता. इट इज द ऑपोजिट. फॉर यू टू अंडरस्टैंड संसार, दिस वर्ल्ड, you have to distance yourself, and then you will realize, I am not this world, I am not this body, I am not this mind, I am not the gunas, sattva, rajas and tamas, which are clashing with each other. But how do you know the Lord? It is the opposite. We have to become one with him. इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता. परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं. यह भी नियम है. राम सुखदास जी बोल रहे हैं, कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं. कारण क्या है? कि एक्चुअली वी फील कि हम परमात्मा से अलग हैं और संसार से एक हैं. पर द रियलिटी इज हम संसार से अलग हैं पर एक तो परमात्मा से है. राइट? सो ब्यूटिफुल इजंट इट? सो रीअश्योरिंग. शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है. शरीर की संसार के साथ एकता है, शरीर की, मन की, बुद्धि की, अहंकार की, चित्त की. मेरी नहीं है संसार के साथ एकता. और हम आरतियों में गाते भी हैं, बार बार मैं बोलती हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. बिकॉज ये जड़ शरीर है और ये जड़ संसार के लिए काम कर रहा है. इसमें मैंने क्या किया? जड़ के लिए काम कर रहा है, राइट? क्योंकि हमारी एकता प्रभु से. सो अगेन, शरीर की संसार के साथ एकता है और हमारी स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है. एंड दिस अंडरस्टैंडिंग is very, very important. How do we get this understanding? How do we get this understanding? विवेक से, विवेक से, विवेक से. There is no other way. And in the next verse, we will touch it next week. The simple thing that the Lord is saying, please डोंट गो अराउंड टेलिंग एवरीबडी कि कोई फर्क नहीं पड़ना है ना. जो सत्य कर्म कर रहा है, जो अच्छा कर्म कर रहा है, भले ही वो फल के लिए कर रहा हो, राइट? सपोज आई एम डूइंग गुड एक्शन सो दैट आई गो टू हेवन, और आई एम डूइंग गुड एक्शन बिकॉज आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आई थिंक इट इज नाइस टू डू गुड. यू नो, वट एवर बी द रीजन, लेट देम बी. डोंट शेक देयर बिलीफ कि अल्टीमेटली, जैसे बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं ना, वी आर गोइंग टू डेल्व इन इट डीपर इन द नेक्स्ट वर्स, यू नो, कि मेरी जर्नी स्वर्ग तक नहीं है. माई जर्नी इज नॉट ओनली टिल हेवन. ये काफी समय तक समझ नहीं आता था, अब समझ आता है कि मेरी जर्नी तो उसके परे है, स्वर्ग से परे. हम तो अभी सिखाते हैं ना, अच्छा करा तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करा तो नर्क मिलेगा, ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा. इसे कर लेने दो. जो मनुष्य है उसको जो करना है उसको कर लेने दो. डोंट रैटल हिज बोट बाय टेलिंग हिम इट डज नॉट वर्क लाइक दिस. यू आर नॉट द कर्ता, यू आर नॉट द भोक्ता, देयर इज नो एक्शन, देयर इज ओनली एन एक्शन. कुछ नहीं. लेट हिम. डोंट रॉक एनीबडीज बोट येट. एंड व्हाई we'll understand in the next session. It took more time than I thought it would take. We will close the class. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ तृतीय अध्यायः कर्म योगः. Shri Bhagavan Uvacha. We had not started like this, so I have just started it. And Om Tat Sat iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre
श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।